وجہ تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ فرضی جھڑپن حوالہ مرکزی سرکارس تحقیقات منگ جھڑپن مز ملوث لوگ برہ کن ان ضرورت عمر عبداللہ جموں کشمیر مز افسپا ہٹاؤنک بیان اخ صحیح قدم مرکزی سرکارس پزن امہ حوالہ سنجیدہ قدم تلن محبوبہ مفتی جموں کشمیر مز سڑک حادثن ہند سلسلہ بدستور جاری پنچ کس منگناڑ علاقس مز تازہ حادثہ 10 نفر زخمی ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل ڈاک بنگلہ صوبرس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمت یت مز نائب صدر عمر عبداللہ تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یتی ان والن لوک سبھا انتخابن حوالہ کتھن دل دن آو تت لیڈرن تو ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن پارٹی امیدوار کامیاب بنانے باپت چک سان کام کرن یت زن پارٹی بار اکثریت سان کامیابی حاصل سپدے یل زن عمر عبداللہ ات موقع پہ امت شاہ سند دن آمت بیان ذکر کران مرکزی سرکارس منگ کر ز فرضی جھڑپن حوالہ گھ تحقیقات کرنے یون یت زن ات مز ملوث لوک برہ کن ان ین مشہور دس سال ہو گئے ان کی حکومت کو آج آپ کو افسا یاد ہے 2011 سے میں نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ یہ لڑائی لڑی کہ جموں کشمیر سے اب افسا ہٹانے کا کام ہونا چاہیے اس کی مخالفت کہاں ہوئی امت شاہ صاحب آپ ہی کے ساتھ منتری بنے ہوئے ہیں آج کل اگلے 2 مہینے تک کیونکہ اس بار ان کو آپ نے ٹکٹ نہیں دی جنرل بی کے سنگھ صاحب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے جب میں وزیر اعلیٰ تھا ان کو ذرا بلا کے پوچھئے اس وقت افسا ہٹانے پہ انہوں نے روک کیوں لگائی نام سے لیا ہماری شناخت ہماری پہچان ہمارا وقار سارا کچھ چھینا آپ نے ہم سے اور اس سے بڑا ہمیں ملا کیا کچھ نہیں کھوکھلے وعدے جھوٹے نعرے دھوکہ افسوس ہوتا ہے مجھے جب پچھلے دنوں میں ہوم منسٹر صاحب کا وہ انٹرویو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ پہلے فیک انکاؤنٹر ہوتے تھے ارے ہوم منسٹر صاحب اگر ہوم منسٹر رہ کے آپ کو یہ معلوم تھا کہ فیک انکاؤنٹر ہوئے ہیں جموں کشمیر میں تو بتائیے کہاں ہوئے کس نے کرائے کیا وہ فوج کے ہاتھوں ہوئے سی آر پی کے ہاتھوں ہوئے بی ایس ایف کے ہاتھوں ہوئے پولیس کے ہاتھوں ہوئے انکوائری اٹھائیے کمیشن اٹھائیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ چینل کے انٹرویو میں کہیں آپ چینل کے انٹرویو میں کہیں کہ فیک انکاؤنٹر ہوتے تھے یہ تو ہم بھی کہتے تھے کہ ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں ثابت ہوا ہے فیک انکاؤنٹر جہاں ان لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے ان کے عدالت کی طرف سے ان لوگوں کو چھوڑنے کا کام بھی اسی حکومت نے کیا کیا ہم بھول گئے کہ رجوری کے وہ لوگ جن کو شپیہ میں مارا گیا تھا فوج کے ہاتھوں جن کو فوج کی عدالت میں گنہگار پایا گیا ان کو موجودہ حکومت نے چھوڑنے کا کام کیا یہ نہیں کیا جو مقصد فیک انکاؤنٹر میں گنہگار پائے گئے تھے ان کے افسروں کو چھوڑنے کا کام اس حکومت نے کیا یا نہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ فیک انکاؤنٹر ہوتے تھے ہوم منسٹر صاحب ہم آپ سے انکوائری کا اعلان سننا چاہتے ہیں ہم شکایت نہیں کریں گے الیکشن کوڈ کا ہم الیکشن کمیشن کے پاس جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ماڈل کوڈ کا وائلیشن کیا ہے ہم استقبال کریں گے آپ کے اس آرڈر کا بٹھائیے آج انکوائری اور بتائیے یہاں کے لوگوں کو کون تھا ذمہ دار وہ فیک انکاؤنٹر جن فیک انکاؤنٹر کی خبر آپ سے آئی ہم سننا چاہیں گے آج کہتے ہیں کہ جموں کشمیر پولیس سے اب ان کو بھروسہ ہے آج آپ جانتے ہیں
PDP सदर महबूबा मुफ्ती अमित शाह सद बयान खैर मकदम करान वोनमुत योदवे PDP तरफ यह मांग पत्म कया काल पे ताहम आज गरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीरन अमे हवाले कत कर्म जन खुशाइन कदम ये जन तमो वोन वन पज मरकजी सरकारस अमे हवाले संजीद कदम तुलन। जहाँ तक एसफा का रिवोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और PDP इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने BJP के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं एसफा को भी ख़त्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरियाज से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या PDP इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस हैं या ये एक जुमला है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे, इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज़ ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टटू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की ज़रूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं ये। तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्हें ज़ख्म दिए कुछ उसमें मरहम हो जाए, तो सबसे पहले कितने जर्नलिस्ट हमारे बंद हैं, तो कम से कम पहले उनको रिलीज़ कर दें जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कोई इल्ज़ाम उनके खिलाफ साबित नहीं हो। तो हम सोचें ये सच बोल रहे हैं, अदरवाइज तो ये जुमला। जम्मू कश्मीर सड़कन पे सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी आज जिला पुंछ किस मंगनाड़ इलाकस मज ताज़ा हादसा पेश आमुत यथ मज अल पल 10 नफर जख्मी सपद यम जन इलाज मुआलजे बापत हस्पताल मज दाखिल करना आये, ये जन पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव। यपर हस्पताल जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत यिथन मौकन पे गि हस्पताल मज जमगट कर यून यम सकार मुतासर सपदन। ये सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, कभी फर्स्ट एड हो गया, सबका एक्सरेज वगैरह हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि इनका लेवल ऑफ इंजरी क्या है। और यहाँ पे अभी तक तो सभी स्टेबल हैं, तो कोशिश करेंगे यहीं पे सबका इलाज हो जाए। अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल हुआ तो फिर उसको हम रेफ़र भी कर सकते हैं। जब कभी ऐसा कुछ भी डिज़ास्टर होता है तो हमें एक ही परेशानी आती है कि लोग सारे अंदर आ जाते हैं, उसमें क्या हमारा स्टाफ काम नहीं कर सकता और पेशेंट सफ़र हो जाता है। हमारी अपील है लोगों से कि वो डॉक्टरों के हवाले करके खुद तसल्ली से बाहर बैठ जाया करें, जिस चीज़ को ज़रूरत पड़ेगी हम उसके अटेंडेंट को बुला लेंगे और लोग रश ना करें। दूरो अनंतनाग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साइंस करना आमुत यथ मज मोहम्मद अल्ताफ कलू, सईद तवकीर तो दोमो पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो इन वालन लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें, युत जन इन वालन लोकसभा इंतखाबन मज पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनाने मज आसानी सपदे। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इंतखाब नजर तल थवित पार्टी सरगर्मी मजीद तेज करना आम युत जन पार्टी वर्करन तो लीडरन हुंद जोश बरकरार रोज। जैसे आपने देखा पिछले हफ्ते से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का तंजीमी कन्वेंशंस है, ब्लॉक कन्वेंशंस, अपने साथियों के साथ मिल के बात करना, ये सिलसिला जारी है और आगे भी इंशाल्लाह ये जारी रहेगा।
साथियों से मशवरा करके, साथियों को पूछ के, साथियों का सुन के हम तंजीम को फ़ाल बनाने की और मजबूत बनाने की बहुत कोशिश हमारी जारी है, जो कि हमारी हिदायत है सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को, उमर साहब की तरफ से, फ़ारूक साहब की तरफ से, सागर साहब और नासिर साहब, तमाम लीडरशिप की तरफ से, कि हर ब्लॉक में जाके अपने साथियों के साथ बात करके मिलके उनसे मशवरा लेके, ताकि हम आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है उनके लिए तैयार रहें, और इंशाअल्लाह रहमान हम तैयार हैं। रहा सवाल कैंडिडेट का, मैं आपसे आप लोगों से अब थक चुका बोल के आप मीडिया वाले बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही क्यों पूछते हो कैंडिडेट क्यों? अरे बाकी लोग करने दो। हमारे वाइस प्रेसिडेंट उमर साहब ने कहा ईद के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह रहमान हम अपने कैंडिडेटों का ऐलान करेंगे। जो भी होगा, जो भी पार्टी का नुमाइंदा होगा, हमें उसको शुमाली कशीर हंदिस वारमलिस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीबी हंद साज करना आमुत यथ डॉक्टर ताहिर चौधरी अलाव दोमो लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी सरगर्मियान हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत काम करें, युत जन इन वालन लोकसभा इंतखाबन मज पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदि। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं था, यहाँ पे मेन आना था डिस्ट्रिक्ट बारामूला की टीम से मिलने के लिए, प्रेसिडेंट साहब से मिलने के लिए, जो यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक तरीका रहता है इस तरह से काम करने का, संगठन का सभी की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, और मेरी भी ड्यूटी पूरे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स की लगी हुई है। वही एक वजह थी आज मैं यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो पूरे हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी है तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। एक भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कांग्रेस को हम हल्के में नहीं लेते, दूसरी जमातों को हल्के में नहीं लेते। और जब हम इलेक्शन की बात आती है, ग्राउंड ज़ीरो पे हमारा कार्यकर्ता हमेशा 24/7 इलेक्शन में हम लोग तैयार रहते हैं। उसी की वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का आप इस टाइम पे काम करने का तरीका देख रहे हो। पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हो कैसे रोज़ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हवाएं बदली हुई हैं। और मुझे लगता है 2024 में पूरे देश में हम बहुत बड़े बहुमत के साथ 400 से ज़्यादा सीट्स लेके हम फिर एक मजबूत सरकार बनाएंगे। और प्रधानमंत्री साहब का जो एक सपना है एक नए भारत का, उसको हम कहीं ना कहीं उसमें हम कामयाब हो चुके हैं। और बहुत सारी चीज़ें प्रधानमंत्री साहब के सोच में चल रही हैं, उसको भी हम पूरा करेंगे आने वाले टाइम पे। देखिए, दिनों की बात है, उनके इस बयान का जवाब उनको मिल जाएगा, क्योंकि परिवार की सियासत हम कश्मीर में नहीं डेवलप होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, यहाँ के आवाम के हौसले बुलंद हैं। यहाँ का आवाम समझ चुका है कि 70 साल किन लोगों के हाथों में वो खेलते रहे। ये लोग बच्चों के हाथों में पत्थर दे के इन लोगों ने सरकारें बनाई हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे, एजुकेशन डिस्टर्ब रहती थी, एक आम व्यापार करने वाले इंसान की दुकान बंद रहती थी, हर जुमे को नेक लंडर निकाले जाते थे इन्हीं की वजह से। और कैसे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर आज जनूबी कशीर हिंद त्राल इलाकों दौर कोर्मुत, या दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो हाई डेंसिटी नर्सरी इफ्तिताह कोर, तत तिमो वोनमुत ज अमि सत वाते इलाकन बाग वालन सठोई फायदे। डायरेक्टर मौसूफन वोनमुत ये हार्टिकल्चरस मज जदीद टेक्नोलॉजी हंद इस्तेमाल अमन मज अनित बाग वालन राहत दिन कोशिश कर तत मुख्तलिफ स्कीम मुतारिफ कर बाग वालन फायदे वातन कोशिश कर। ये आज हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आए, त्राल नर्सरी में हमारा यहाँ एक हाई डेंसिटी का बाग बन रहा है 40 कनाल का। तो इसकी इनाग्रेशन थी, उसमें प्लांटेशन हो रही है इस वक्त। तो ये HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में ये बन रहा है। तो इन बागों का मकसद ये है, तो एक तो ये डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट है क्योंकि ये यहाँ नज़दीक है, आईडी के नज़दीक फिर लोगों का आना जाना भी यहाँ रहता है। दूसरा, इससे ग्राफ्ट वुड भी काफ़ी हासिल हो जाएगा क्योंकि हमें जो आगे नर्सरीज़ बनानी है उनमें लाखों की तादाद में हमें ग्राफ्ट वुड की ज़रूरत पड़ेगी 2 साल बाद या 1 साल बाद, तो वो भी इस बाग से हासिल हो जाएगा। तो साथ साथ में जो अभी ज़मीन यहाँ पड़ी थी हमारी 30-40 कनाल की, ये तो बेकार ज़मीन पड़ी थी, इसको भी हमने कारआमद में लगाया। एक तो रेवेन्यू का भी ये रेवेन्यू एक सोर्स बन जाएगा, और दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट भी बन जाएगा, और दूसरा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यहाँ पर बन जाएगा।
और साथ साथ में जो यहाँ के स्टाफ है वेल क्वालिफाइड है, चीफ साहब भी ने भी इसमें उनको काफ़ी मदद की है। तो हर एक, जैसे मुझे बताया गया कि हर एक इनपुट इनको दिया गया है, मशीनरी भी इनके पास अवेलेबल है, मैन एंड मशीनरी दोनों इनके पास अवेलेबल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बाग बनेगा या आइंदा सालों में एक तो इस इलाके के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन बन जाएगा, और दूसरे इसमें लोग चूँकि यहाँ आना जाना काफ़ी रहता है वो भी आएंगे देखने के लिए, और उनका शौक़ भी इसमें बढ़ जाएगा। हार्टिकल्चर में जो इस साल स्कीम्स चल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता पिछले 40 या 50 साल से जब से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वजूद में आया ऐसी स्कीमें आई है जहाँ पर आपको खासकर हाई डेंसिटी में, और जहाँ आपको हर चीज़ पर सब्सिडी है, कि प्लांट्स पर भी सब्सिडी है, ट्रेडिस पर भी 50% है, ड्रिप पर भी 50% है, ज़मीन को लेवलिंग करने में, जोतने में उस पर भी सब्सिडी है, फिर आप जो गड्ढा खोदते हो प्लांट्स के लिए उसमें भी सब्सिडी है, फिर आप जो खाद लगती है उसमें भी सब्सिडी है, फिर जो उसमें दवाई लगती है उसमें भी सब्सिडी है, फिर जो इसमें मशीनरी लगती है उसमें भी सब्सिडी। तकरीबन 9 आइटम्स में सिर्फ हाई डेंसिटी बाग बनाने में सब्सिडी है। तो इससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट तो मतलब ये तो काफ़ी, मतलब हम देख रहे हैं पिछले जो भी स्कीम्स आई इसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो इसमें है। तो आज जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान है उसमें 80% सब्सिडी है इन्हीं 9 चीज़ों पर। जो जनरल हाई डेंसिटी है उसमें 50%, लेकिन हॉलिस्टिक में 80% सब्सिडी है। तो इसमें लोगों को चाहिए कि नर्सरी बनाने में, रूट स्टॉक बैग बनाने में या मदर ब्लॉक बनाने में आगे आएँ, क्योंकि आगे जो इंपोर्ट हो रहे हैं प्लांट इस वक्त इटली से या बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, वो बंद हो जाएगा और ये प्लांट सब यहीं पर पैदा हो जाएंगे। और ये एप्पल के नहीं बनेंगे, बल्कि वालनट के भी बनेंगे, ये चेरी के भी बन जाएंगे, आलमंड के भी बन जाएंगे, ये तो पेयर के भी बनेंगे, और ये इसका क्या कहते हैं कीवी के भी बन जाएंगे। 5-6 क्रॉप्स ऐसे हैं जिनका काफ़ी यहाँ स्कोप है कश्मीर में। इन सब के अब हाई डेंसिटी बाग आप जिस तरह आप एप्पल के आज देखते हो, नेक्स्ट ईयर में आप देखोगे ऐसे ही बाग चेरी के भी हैं, पेयर के भी हैं, वालनट के भी हैं, आलमंड के भी हैं। कुंजर टेंगमर्ग मज चूरी हजन वारदातन मज इजाफत सपदन सत आम लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत। तत बनगाम कुंजर इलाकस मज ताज़ वारदात पेश आम, यथ दौरान चोर कह मवेशी निनस मज कामयाब सपद। ये पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव। तत मुकामी लूको तरफ वन आमुत अत मज मुलविस लूक गिरफ्तार करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन, युत जन लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने इन। अपील करान गवर्नमेंटस पुलिसस मेहरबानी तो मेहरबानी कर तहकीकात इन गई चूर यम ज्यादा कर मालस सत आज शौखन रचान गुपन रचान शौखन तीर रचान हाइब्रिड तीर यम सत ज्यादा करान रोज किसन आ यू गान पट तो इन कोर्क जबरदस्त नुकसान। पुलिसन कर वेरिफिकेशन, मगर शुक्र गुजार पुलिसस कुंजर चौक खतर एस साहबस खतर कि तम सूज पन टीम योर, तम कोर ये तहकीकात, मगर उम्मीद ज्यादा पुलिसस पे क्या पुलिस हन 7 जमीन तलन अमिस चूरस खल। ये इलाकस मज गई वारियान जान चूर, तमो कोर हासिल कह तमो खड़ तम चूर, ये गई दुकान 2-3 चूर ओत्र। मेहरबानी तो मेहरबानी कर तहकीकात कर सब शुक्र गुजार तस अपील करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर यह चूर गन नुन कड़ने। इन गाश सतान अत मालस पतन तो वह कर कम बिचारो हासिल, मगर बदकिस्मती सान कमिस तान डाकवस पे अत कुन नजर अम सद मालस कुन यह नुक लूट अत गन तहकीकात करना। हम रात को सोए हुए थे तो चोर आए, उन्होंने हमारा गाय खाना जो है पूरा लूट लिया है। हम कुंजर पुलिस स्टेशन का शुक्रगुजार है कि सुबह आए मॉर्निंग में यहाँ पे तहकीकात किए, फ़ोटो वोटो लिए और वो केस की तहकीकात कर रहे हैं अभी। तो हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि दिन ब दिन चोरी के वाक़ात बढ़ते जा रहे हैं, तो चौकन न रहे कि कल को उनके साथ भी ऐसा वाक़या पेश आ सकता है। गुपन तो हाइब्रिड सरकार वन इत तुम रचो तीर तह मिलो अत असल फ़ायदे अत पे घर बार चलान अमे मूजूब शौक गरकन तथ पे घर बार चलान तो थम कल अत गानस मज सुबह गई घास त्रान अत अत गान पट। लारनू कोकनागस मज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आम, यथ दौरान दुकानदारन हिंद नरकनाम चेक करना आय। अत मौके पे कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आय। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद मुहिम रोज बदस्तूर जारी, युत जन आम लूकन राहत वात। के मौके पर भी अक्सर देखा गया है कि कुछ दुकानदार जो है एक्सपायर्ड आइटम्स भी जो है अपनी दुकान में सेल के रखते हैं,
तो जो सेहत के लिए तो डेंजरस है ही, खासकर बच्चों के आइटम्स भी देखे गए हैं जो एक्सपायर्ड होते हैं जी। तो इस चीज़ का इंस्पेक्शन करने के लिए आज हमने एक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और उसके अलावा अक्सर देखा गया है कि दुकानों के बाहर जो है गंदगी पाई जाती है, चाहे वो मुर्गे का वेस्ट हो या चिप्स के पैकेट्स का वेस्ट हो, टॉफ़ीज़ हो। तो जैसे कि ये टूरिस्ट एरिया है तो यहाँ और ये इकोलॉजिकली भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे इसलिए एक वार्निंग भी आज इशू की गई है कि ये जो भी तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।